Good afternoon, students. How are you? I hope you all are well. Myself, Anurag Kumar Dubey. I am a chemistry teacher from Subrat Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about covalent bond. Okay, today we are going to start a new topic, bond parameter. Bond parameter. Okay, in bond parameter we will first discuss about dipole. What is dipole? Dipole होता क्या है? ठीक है, कहें क्या कि when two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges are placed at such distance that they are within electrical field of each other. Okay, such system is called dipole. Such system is called dipole. When two equal and opposite charges are placed at such distance that they are within electrical field of each other, such system is called dipole. Suppose that atom A and atom B both are bonded a bond, okay, and distance from A and B is D, है ना. Two equal charge, two equal and opposite, say plus Q and minus Q. This system is called dipole system. Plus Q and minus Q, two equal and opposite charges placed at such distance is D, that they are within electrical field of each other. Such system is called dipole. Okay, और dipole always present in a molecule, but आप कह सकते हैं कि डाइपोल सिस्टम कहाँ पे होगा? When bond present between two different atoms, not same atom. अगर सेम एटम होगा तो कभी डाइपोल नहीं होगा वो. ठीक है, क्या होना चाहिए? टू डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, जिससे पोल क्रिएट होगा, प्लस एंड माइनस, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं. ओके, तो ये आपका टॉपिक था क्या? डाइपोल. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल मोमेंट. Dipole moment represented as mu. Question, what is dipole moment? है ना. कहें कि डाइपोल, कहें कि a bond formed between
two different atoms, one atom should be more electronegative and other atom should be less electronegative. Okay, so bond attracted towards B and gain partial negative charge, and A atoms have partial positive charge. This condition of molecule is dipole. यह कंडीशन मॉलिक्यूल की क्या कहलाएगी? डाईपोल कंडीशन कहलाएगी. अब हम बात करते हैं कि डाईपोल मोमेंट होता क्या है. कहीं क्या कि डाईपोल मोमेंट is a vector product of charges of dipole. Dipole moment is a vector product of charges of dipole and distance between charges. Okay, suppose plus q and minus q charges present at distance d from each other. Okay, suppose plus q and minus q. Suppose that this is the point and here is the plus q charge and here is the minus q charge, and distance d from each other. तो डाईपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू q इंटू डी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू q इंटू डी. वेयर इज म्यू? म्यू क्या है हमारा? डाईपोल मोमेंट. ओके, एंड q is the charge. And d, what is the d? d is the distance. Okay, तो म्यू is the dipole moment equal to charge into density. Okay, so this is the formula of dipole moment. Mu is equal to q into d. Okay, suppose that two charges plus q and minus q present at a such distance d from each other. Okay, so dipole moment mu is equal to q plus q and minus q into d. Okay, suppose that in any question which is related to dipole moment, है ना, given the value of charge and value of distance, so we can easily find out the dipole moment. कर सकते हैं. Okay, unit of dipole moment is d by and 1 d by is equal to 10 to power minus 18 ESU centimeter. Okay, तो 1 d by is equal to 10 to power minus 18 ESU centimeter, and unit of
dipole moment is d by, and 1 d by is equal to 10 to power minus 18 ESU, and SI unit of dipole moment is, SI unit of dipole moment is Coulomb meter. तो SI unit of dipole moment is Coulomb meter, and unit of dipole moment is d by, 1 d by is equal to 10 to power minus 18 ESU meter. Okay, and formula of dipole moment is mu is equal to q into d. What is the q? Q is the charge. Q is the charge which is present at pole, and d is the distance between plus q and minus q. Then what will be dipole moment? Dipole moment represented as mu, and mu is equal to q into d. If we know value of q and value of d, मतलब distance, then we can easily find out the dipole moment. Dipole moment is equal to charge into density, sorry, distance. Distance, okay, not density, sorry. तो bond length bond angle, bond energy, these are called bond parameter. Okay, तो bond length, bond energy, bond angle is called bond parameter. Okay, we will discuss one by one, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? बॉन्ड लेंथ, आफ्टर दैट बॉन्ड एनर्जी, आफ्टर दैट बॉन्ड एंगल. ओके, तो बॉन्ड पैरामीटर क्या है समझ में आ गया होगा आपको. चलिए, फर्स्ट बॉन्ड लेंथ. व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? कहेंगे इक्विलिब्रियम distance between two bonded atom in a molecule express its bond length. Equilibrium distance between two bonded atoms in a molecule express its bond length. For example, suppose that carbon single bond, okay, carbon double bond and carbon triple bond. एक चीज मैं आपको और बता दूं, in dipole moment, if a dipole present in a molecule, अगर एक डाइपोल मॉलिक्यूल में क्या है? प्रेजेंट है. ओनली वन डाइपोल, केवल एक डाइपोल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा डेफिनेट होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है. ठीक है. इफ टू आर मोर डाइपोल प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, अगर एक से अधिक डाइपोल मॉलिक्यूल में क्या है? प्रेजेंट है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वह जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इट इज डिपेंड ऑन मॉलिक्यूल. ये किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स पर. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल मोमेंट. चलिए हम आते हैं इस पे. कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो वहाँ से कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन
following factors. Bond length depends on following factors. First, nature of atom. Nature of atoms. Okay. And second, extent मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड. जो बॉन्ड का नेचर है वह किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एटम्स पर. एंड एक्सटेंट ओवरलैपिंग पर, कि कितना एटम ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, या ओवरलैपिंग किस टाइप की है. तो दो चीज़ों पर कौन कौन से? बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर ऑफ एटम्स, एक्सटेंट ओवरलैपिंग एंड सम अदर फैक्टर्स. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बॉन्ड लेंथ are measured by X-ray diffraction. X-ray diffraction. तो bond lengths are measured by X-ray diffraction. ओके. अब आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डबल का कम है, ट्रिपल का और कम है. क्यों कम है? इसके पीछे क्या रीज़न है? अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स बॉन्ड लेंथ. कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है? फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. When we move across the period left to right, like as lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, etc. Okay. तो left to right. When we move left to right across the period, okay, electronegativity increases. Electronegativity increases and size is decreases. Electronegativity increase करती है और size decrease करती है. ओके. इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड लेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर. अगर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा. इफ बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर. ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे C बॉन्ड F, C बॉन्ड Cl, C बॉन्ड Br, C बॉन्ड I. ओके. चलिए, when we move top to bottom in group 17, fluorine, chlorine, bromine, iodine, atomic number 9, 17, 35, 53. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, यहाँ पे 287, इसका 2818 7, इसका 2818 18 7. ओके. तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज. KL, फिर KLM, फिर KLMN, फिर KLMNO. तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा,
टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस. इफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस सो साइज आल्सो इंक्रीजेस. इफ साइज इंक्रीजेस सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड लेंथ है वह कब इंक्रीज करेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगा तो साइज कम होगी. साइज कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल ग्रेटर होगा. अगर ग्रेटर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा. ठीक है. और अगर साइज ज़्यादा होगा किसकी? एटम की साइज. टॉप टू बॉटम आने पर एटम की साइज इंक्रीज करती है. अगर एटम की साइज इंक्रीज करेगी तो रेडियस इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा. और साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा. सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? आयोडीन का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है. कितने? 2, 8, 18, 18, 17. मतलब नंबर ऑफ कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है ना. अब देखिए डिस्टेंस न्यूक्लियस फ्रॉम बैलेंस सेल. वैल्यू क्या हो रही है? आर. रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. तो ग्रेटर कौन होगा? सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? Ci का, कार्बन बॉन्ड आयोडीन का. उससे कम कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन, उससे कम कार्बन बॉन्ड क्लोरीन और सबसे कम कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है. ओके तो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन. जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज़्यादा होगा. ओके. सेकेंड फैक्टर एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. ओके कहें क्या कि बॉन्ड लेंथ is directly proportional. Bond length is directly proportional atomic size के होता है. इसका मतलब क्या? एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा. एटम की साइज डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा. क्लियर? व्हाई? बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज के. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ टेक एन एग्जाम्पल से H बॉन्ड I, H बॉन्ड Br, H बॉन्ड Cl एंड H बॉन्ड F. ओके चलिए टॉप टू बॉटम हम आते हैं. टॉप टू बॉटम क्या क्या है हमारा? हाइड्रोजन इज कांस्टेंट. सब में हाइड्रोजन क्या है? रिमेन कांस्टेंट. तो फ्लोरीन क्लोरीन को चेक करते हैं. देख सकते हैं when we move top to bottom number of cells increases. KL फिर इसमें KLM फिर KLMN and KLMNO. number of cells increases. if number of cells increases so size also increases. तो साइज भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. और if size increases so bond length is also increases. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी. आयोडीन की. क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है. तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? HI, आफ्टर दैट HBr, आफ्टर दैट HCl और आफ्टर दैट HI. है ना. तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. चलिए बॉन्ड लेंथ आल्सो डिपेंड्स ऑन सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो बॉन्ड लेंथ आल्सो डिपेंड ऑन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देयर इज अ लेस ओवरलैपिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, है ना। लेस ओवरलैपिंग मीन्स देयर इज दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एंड अदर टू इज pi bond, but overlapping there is only one overlapping. In the case of sigma bond, found the end to end overlapping. In the case of double bond, one end to end and other side to side overlapping. Or in the case of carbon carbon triple bond, one end to end overlapping and other two side to side overlapping, है ना। तो where is the extent overlapping between एटम्स? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है एक्सटेंट ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड ये है, एक ये ओवरलैपिंग इतना हुआ, अब डबल में ओवरलैपिंग और हुआ और थर्ड में ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग ड्यू टू एक्सटेंट ओवरलैपिंग बॉन्ड बिकम शॉर्टर। बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्टर हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसका है? कार्बन कार्बन का, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और सबसे कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ओके, चलिए, वेरी गुड। दिस इज द थर्ड फैक्टर्स। फोर्थ फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ फैक्टर इज hybridization. Hybridization. In this chapter, we will study hybridization and types of hybridization like as sp hybridization, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3 etc. Okay. sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization. ठीक है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। sp, sp2 एंड sp3, है ना। इट इज डिपेंड ऑन बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? s कैरेक्टर पर। किस में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होगा? तो सबसे कम s कैरेक्टर किस में होता है? sp3 में। वाई? बिकॉज 1s 3p, एक s है 3p है, यहाँ पे 1s 2p, यहाँ पे 1s 1p, तो 50-50% का है मामला। 50% यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 33%, और यहाँ पे 25%। ठीक है, तो इफ इन मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगा। वाई? ड्यू टू लेस s कैरेक्टर, ड्यू टू लेस s कैरेक्टर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। जैसे sp2 है तो C डबल बॉन्ड C2H4, इसमें यस कैरेक्टर कितना है? 33%। 33%, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा क्या हो गया? और कम हो गया। इसमें थोड़ा ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ कम हो गया। और बॉन्ड एंगल देखिए, sp3 था तो बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट का। अब देखिए 33% यस कैरेक्टर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन हो गया कार्बन पर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड लेंथ 120 डिग्री।
ये 109 था, ये 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 50% यस करेक्टर आ गया, तो फॉर एग्जाम्पल C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H एसिटिलीन, तो बॉन्ड एंगल कितने का हो गया 180 डिग्री का। अब देखिए 109 से 120 एंड 180 बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। sp3 में सबसे कम, sp2 में उससे ज़्यादा और sp में सबसे ज़्यादा। क्यों सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे यस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा बिकॉज देयर इज अ 3 बॉन्ड इन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 डबल बॉन्ड, sp3 में ओनली सिंगल बॉन्ड। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा किस में होगा, sp3 में, उससे कम sp2 में, सबसे कम sp में, ड्यू टू s कैरेक्टर। सबसे कम s कैरेक्टर होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करता जाएगा। s कैरेक्टर कम होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ओके, बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? व्हेन टू आइसोलेटेड gaseous atom combine to form a bond, the energy released, okay, this energy released is equal to the bond energy of bond. Bond energy, it is also known as or bond enthalpy. Okay, bond energy is also known as bond enthalpy. What is bond enthalpy? When two isolated gaseous atom combine to form a bond, the energy released, this energy released is equal to the bond energy of that bond. Okay, for example, say H is the isolated gaseous atom, okay, and another is H, it is also isolated gaseous atom. When both hydrogen atom approach with each other, hydrogen has only one electron, another hydrogen has also one electron, both electron present in between of both atom and share with each other. इलेक्ट्रॉन को क्या किया उन्होंने, शेयर किया। दिस इज शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड वन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म वन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड के बनने में व्हेन टू एटम, देखिए लिखा हुआ है व्हेन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो हाइड्रोजन इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, ओके, एंड कंबाइन, जब दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एंड कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड, दोनों कंबाइन करके एक कोवैलेंट बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच। जो रिएक्शन की हीट होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से, और वो कितना है, जो रिलीज होगी एनर्जी वो नेगेटिव में होगी, -432 किलो कैलोरी पर मोल, है ना।
तो कितना रिलीज हो रहा है, -432 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब हाइड्रोजन बांड, इस बांड के बनने में, दोनों एटम के बीच इस बांड को बनने में कितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, -432 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। कोई पूछता है व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, क्या कहेंगे कि व्हेन टू आइसोलेटेड गैसियस एटम कंबाइन टू फॉर्म a bond, combined to form a bond, the energy released, this energy released is equal to the bond energy of that bond. Okay, तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, -432 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। A bond is called bond dissociation energy, bond dissociation energy। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द minimum amount of energy required to break a bond is called bond dissociation energy। Suppose that अभी आपने बनाया था H2 मॉलिक्यूल, ये आपका बना था H बॉन्ड H। अब इसको हमको ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है बॉन्ड को। तो तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है नेगेटिव, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ था बॉन्ड के बनने में, -432 किलो कैलोरी पर मोल। तो इतना रिलीज हुआ था, इतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी 432, किसके लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो क्या बन जाएगा हमारा, H बॉन्ड H। तो यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, +432 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये हमारा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए, फॉर मल्टी बॉन्डेड एटम्स बॉन्ड एंथैल्पी इज हायर। मल्टी बॉन्डेड एटम्स मतलब लाइक एज अ O2 मॉलिक्यूल, एंटी मॉलिक्यूल, है ना। इन दिस मॉलिक्यूल हैव नंबर ऑफ बॉन्ड्स लाइक एज अ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। लुईस स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनको अगर हम ब्रेक करेंगे तो किसमें, O+O में, इनको ब्रेक करेंगे तो N+N में। इनकी बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्यों, ड्यू टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, और बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो हाउ मेनी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसमें, ऑक्सीजन में, और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, किसका, नाइट्रोजन, N2 को N and N में।
तो यहाँ पे डेल्टा एच इसका क्या होगा, डेल्टा एच इसका क्या होगा, 498 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और इसमें कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 946 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये था हमारा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, और उसको ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट एनर्जी लगेगी बॉन्ड को बनाने के लिए उतना ही एनर्जी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बट डिफरेंस क्या है कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वह नेगेटिव में होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा, वह किस में होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा। ओके, एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। फैक्टर्स ऑन विच bond energy depends. First, atomic size. Okay, तो bond energy is inversely proportional to the atomic size. Okay, atomic size. If atomic size of an atom is lesser, atomic size जितना ज़्यादा स्मॉल होगा, if atomic size of an atom is small, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्मॉल होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बॉन्ड इंथैल्पी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, जितना स्मॉलर होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। और बॉन्ड एनर्जी जितना कम होगा एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा ग्रेटर होगा। ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इफ देयर इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड या देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड, इफ देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड देन एक्सटेंट ओवरलैपिंग, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगा। इफ देयर इज अ एक्सटेंट ओवरलैपिंग सो बॉन्ड एनर्जी विल बी ग्रेटर, तो उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सेकेंड है, इससे कम, फर्स्ट का सबसे कम। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ओके, क्लियर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉर एग्जांपल F बॉन्ड F, O डबल बॉन्ड O एंड N ट्रिपल बॉन्ड N। लोन पे इलेक्ट्रॉन देयर इज अ 1, और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 मतलब एक पेयर को हम एक लोन पेयर कहेंगे, तो हाउ मेनी पेयर, 1 2 3, 3 लोन पेयर, 3 3 का है। यहाँ पे 1 2 2 लोन पेयर है, 2 2, और यहाँ पे लोन पेयर 1 2 मतलब 1 1 लोन पेयर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स जिसमें ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जिसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने, 3 3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर 2 2 है। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है, कम है।
तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा साइज उतना ही ग्रेटर होगा और बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जितने कम होंगे, देखिए ओनली 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। If there is a 1 lone pair electron, there is a minimum repulsion. If there is a number of lone pair electron या maximum number of lone pair electrons, so there is a maximum repulsion. If there is a maximum repulsion, so size will be greater. If size will be greater, so ionization energy या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, लेसर। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, उससे कम इसका, इससे कम इसका, है ना। मिनिमम लोन पेयर लेस रिपल्सन, मैक्सिमम लोन पेयर मोर रिपल्सन लेस एनर्जी, लेस रिपल्सन मोर एनर्जी। ओके, तो जितना कम लोन पेयर होगा उतना ही कम रिपल्सन होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक है इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, द एंगल between line separating the bonding orbital is called bond angle, okay। for example H2O 4, ओके। H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। देयर इज अ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट। NH3 H बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। देयर इज अ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 107 degree, okay। there is a 1 lone pair, here is a 2 lone pair, and CH4 bond angle between 2 atom या 2 line in CH4 109 degree 28 minute, okay। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड एंगल। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस एग्जाम्पल के लिए इतना समझते रहिए, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एंजॉय विथ केमिस्ट्री। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।